Okay. Mm-hmm. Zero indexed integer array. Here is called beautiful if the first digit are co-prime. Okay. Total number of beautiful pairs. Um, so it's just brute force. Yeah. Right. So basically just brute force, right? Because constraints are small. Okay. So num size I0 less than I plus plus int j is equal to I plus 1, j less than n, j plus plus. Now, if they are co-prime, right? So first guy is nums of I mod 10. Second is nums of j mod 10. And if they are co-prime, so if underscore underscore GCD of first and second is 1, I will say count plus plus, count is 0, return count, right? That's what the solution is. Let's see. 5, 3. Are we not missing? Oh, that's 3. IJ. Oh, we need to take the first digit and last digit, right? Oh, okay. So that's the last digit basically of nums of j, right? And there should be the first digit of nums of j. So we need to find the first digit, right? You can say here last. How to find the first digit of nums of I? Okay. So maybe like temp guy is nums of I, and while the temp is like greater than equal to 10, I know, while this temp is greater than equal to 10, keep dividing this guy by 10. तो इससे क्या होगा? एक एक डिजिट हटता जाएगा, राइट? Yes, and this first would be the stem only. Yeah. So now let's see. Yeah, I think it should be correct. Okay, cool. Minimum operations to make the integer 0. Okay, we are given two integers, num1 and num2. One operation you can choose integer I in the range and subtract 2 to the power I plus num2 from num1. Return the integers denoting the minimum number of operations needed to make num1 equal to 0. It is impossible to make num1 equal to 0, return -1. Okay, so you're given two integers, num1 and num2, and you have one type of operation in which you can choose integer I in this range. So 2 to the power 0 मतलब 1 से लेके 2 to the power 60 is like 10 to the power 18. And subtract this thing from num1. Okay. Okay, subtract something from num1. Return the integer denoting the minimum number of operations needed to make num1 equal to 0. Okay. Basically, अगर तुम num1 minus 2 to the power I
प्लस num2 कर रहे हो, है ना, और तुम्हें इसको 0 बनाना है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में. ओके, it is impossible to make num1 equal to 0, return -1. Okay, so if we have 3 here and if we have -2 here, okay, this is plus, right? Num2 can be negative, num1 is 10 to the power 9. We have 3 and -2, so we can make 3 equal to 0. The following operations: we choose I is equal to 2, subtract from 3, it becomes 1. Then we can choose this. Oh my god. Okay, this looks difficult to me. Ways to split array into good subarrays. So you're given a binary array nums. Subarray of an array is good if it contains exactly one element with the value 1. Return an integer denoting the number of ways to split the array nums into good subarrays. As number too large, return it. Subarray, okay. You're given a binary array num. Subarray of an array is good if it contains exactly one element with the value 1. Return an integer denoting the number of ways to split the array. This looks like a DP because number of ways to split it, right? So okay, basically I think this is a simple DP because अगर 0 1 0 0 1 है तो बेसिकली अभी हम क्या करेंगे कि चलो ठीक है 0 है, 0 लिया तो या तो यहाँ पे कट मार सकते हैं, ठीक है, कट मार सकते हैं क्या, नहीं, बिकॉज हमारे पास एक ये होगा ना कि 0 एंड क्या हमें 1 मिल चुका है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है अभी हम 0 0 पे खड़े हैं, 0 0 पे हमने 0 लिया, अभी तो कट मार नहीं सकते, तो ये बोलेगा कि 0 इसका नंबर ऑफ वेज जो होंगे 1 0 होगा, है ना, और जैसे 1 मिला तो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होने चाहिए. अगर तुम्हें 1 मिल जाता है तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होंगे फिर भी, राइट, तुम आगे भी जा सकते हो पीछे भी, है ना, तो और अगर जब तुम्हें 1 मिलता है एक बार और देखो यहाँ पे तो 1 मिलेगा तो तुम आगे भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि एक पॉसिबल ऑप्शन ये भी हो सकता है ना. बट जब तुम यहाँ पे आ रहे होगे, लेट्स से कि ये पूरा लेते हुए आ रहे हो, जब तुम ये वाले 1 पे आए तो ये 1 पहले देख लेगा कि हाँ 1 मिल चुका है ऑलरेडी, तो फिर ये बोलेगा कि 0 नंबर ऑफ वेज है, ठीक है. दिस लुक्स लाइक डीपी टू मी, है ना. ओके गुड. रोबोट कोलिजन, this looks like a difficult problem. Okay, maybe we can solve this first. So is there any other way to solve this? There can be. I mean, agar maybe, but I think DP would be like the simplest way to solve this problem. Right. So basically we have like nums dot size, then we'll say return DP of you can start with n-1 also, right? There is no problem, and we don't have it, right? So have 1 is like 0, have 1, right? That should be it. And how much size do we need? 10 to the power 5. So const int m is like 1e5 plus 1, right? So int
cache of size m and 2. Okay. And before calling dp, we will say memset cache. We'll initialize this with like -1. Okay. Now int dp, we have like const int mod as 10 to the power 9 plus 7. Okay. Now int index, int have 1. Right. Now if index is like if index becomes negative, it means there is one way. Again, means there is one way. Because क्योंकि तुम कोई सा वे को लेते हुए आ रहे हो ना, इंडेक्स तुमने नेगेटिव बना दिया. ठीक है. Similarly, if cache of index comma have 1 is not -1, then you will say return this value because we already have stored it. Okay. Okay. Now we have like this things. So अगर let's say कि तुम इस इंडेक्स पे खड़े हो, ठीक है. अब अगर ये 0 है तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन रहेंगे, राइट. तुम आगे बढ़ भी सकते हो और कट जब भी कर सकते हो जब तुम्हारे पास have 1 है. ठीक है. चलो देखते हैं. We also need to pass the string also, na, nums. Yeah, let's pass this as well. Yeah. If nums of index is like 0, now we have two options, है ना. एक option तो ये है ही कि okay, if index is 0, तो have 1 should be 1, right? यहाँ पे तुम्हें ऐसा लिखना होगा if have 1 is 1, or maybe you can directly return like what is have 1, है ना. Okay. और if nums of index is 0, ठीक है, there can be two possibilities. Can be like एक ऑप्शन तो यही है ना कि एक ऑप्शन 1 तो ये है कि तुम आगे बढ़ जाओ, है ना. तो बेसिकली dp of index -1 and have 1, है ना. और ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू ऑप्शंस op2 and option 1 is like तुम आगे बढ़ जाओ तो index -1 and have 1 would be same and nums. ठीक है, तो just move ahead and maybe we can close it, right? So can we close it? So if have 1 is like 1, ठीक है, already, then you can close it here, है ना. तो उसमें तुम क्या बोलोगे कि op2 will be if we are closing it, so have 1 will become 0, right? So index -1, op2 will be 1 plus index -1, right? And 0 and nums, है ना. Yeah. Else if it is 1, तो भी हमारे पास दो ऑप्शंस होंगे, राइट. वी कैन मूव अहेड, बट हम मूव अहेड तभी कर पाएंगे. हाँ, तो इसमें ऑप्शन 2 पहले देख लेते हैं क्योंकि 1 है तो क्लोज तो कर ही सकते हैं, राइट. सो 1 प्लस dp okay, but we also need to update this have 1, right? Yeah, so वो तो ऑलरेडी मतलब अपने आप अपडेट होगा बेसिकली. तो अगर हम इसको देखो, ठीक है, अब अगर have 1 है ऑलरेडी तो वी हैव टू लाइक देयर इज नो वे, राइट. मतलब have 1 ऑलरेडी था, अब तुम 1 को इसको ले रहे हो, सो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी वे, है ना. तो
there is no way, right now. Yeah, so OP1, हाँ तो have one जीरो नहीं होना, मतलब जीरो होना चाहिए मेरे ख्याल से. If have one is zero, then you will say, what you will say कि देखो, अगर वन है, ठीक है, वन ले रहे हो तुम यहाँ पे, यू नीड टू मेक श्योर कि पहले वन नहीं मिला हो पहला चीज पे, तो वो हमने चेक चेक कर लिया. अब अगर वन मिल गया है तो फिर देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो यहीं कट कर दो या आगे बढ़ जाओ, है ना. इफ हैव वन इज नॉट जीरो, you have two possibilities. Option 1 is like DP, index -1. Move ahead, right? Simply. Have 1 is 1. And okay, and OP2 is this is basically moving ahead, move ahead. And OP2 is close it here. So OP2 will be DP of index -1 and 0 and nums. Since we are closing it here, let's say 1 plus DP. Okay, and since we are adding this guy here, it's like 1 plus modly mod, right? It's important to take the mod, I guess. Okay, and like we will be returning OP1 plus OP2, so the result is basically OP1 plus OP2 modly mod and return cache of index comma have 1 as result. So I think this should be correct. Okay. Invalid use of non-static data member. Non-static. Okay. What if we write it as a global variable? Will you accept it? Okay, cool. So let's see. 3 and 1. Oh, 12 and 3. Wow. Why? Okay. Let's consider this guy first, right? 0, 1, 0. Why we are having this? I don't know. Vector int nums as 0, 1, 0. And now we need to say cout a dot number of good subarray sets of nums. How much we are getting? We are getting 3. Wow. Okay, I think I have made some mistake. So if we have 0, 1, 0 और हम यहाँ पे हैं, तो बेसिकली मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे कि हमारे पास क्लोज करने का ऑप्शन नहीं है, राइट? सो क्लोज तो नहीं कर रहे हो ना फालतू. If nums of index is 0, you have two possibilities. Move ahead. तो मूव अहेड तो कर ही सकते हैं, तो OP1 क्या हो जाएगा बेसिकली? वन हो जाएगा DP of index -1 have 1 and nums. Okay, whatever have 1 is, we can move ahead. But can we close it? So yeah, if have 1 is something, then OP2 will be something, right? Yeah. Okay, similarly, if like we have 1, तो 1 है, तो फिर अगर have 1 कुछ है, तो फिर तो
कुछ नहीं कर सकते राइट उस केस में, बट अगर हैव वन नहीं है फिर यू कैन मूव अहेड और यू कैन क्लोज इट. Okay, cool. Let's see like what we are getting here, right? So see out for a particular index, for a particular have one. What is the result? Oh, um, थोड़ा space भी तो डालना पड़ेगा ना. Okay. So basically for 0, having a have one, there are two. Okay, at index 0, if we have one, at index 0, if we have one, there are two. At index 0, if we have one, so we can move ahead. Okay. दोनों सेम ही हुए ना ये दोनों. इंडेक्स 0 पे क्या हो रहा होगा कि लेट्स से तुम्हारे पास 1 है, तो तुमने क्या बोला यहाँ पे कि या तो आगे बढ़ जाओ या यहीं क्लोज कर दो. तो जब तुम आगे बढ़ रहे होगे बेसिकली, सो अगर आगे बढ़ रहे होगे तो मेरे ख्याल से द पॉइंट है कि तुम मत ही भेजो कुछ, है ना. तुम ऑलरेडी आई थिंक रिटर्न 0 करो तो शायद आ जाएगा. सो इट बी हैविंग 1 not 2. Okay, so at index 0 if we have something, there is one possibility. At index 0 if we don't have something, at index 1 we are not having something, and there are two possibilities, either this or this. um yeah, but अगर तुम यहाँ पे ऐसे कर लेते हो, तुम्हें ये भी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पे पॉसिबल है भी या नहीं, है ना. या मतलब देयर शुड बी वन मोर थिंग यार, कि पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं. Yeah. देखो, मेरे ख्याल से यहाँ पे -1 रिटर्न कर दो और -1 नहीं रिटर्न कर सकते यार. -2 कर दे तो. यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि मैं वो वाला केस नहीं कर रहा हूँ. जब उसके लिए एक काम करो, एक और एरे बना लो, राइट, प्रीफिक्स सम्स का. तो प्रीफिक्स है ना, इसमें अभी के लिए तो नम्स डाल दो और फिर एक काम करो कि i इज इक्वल टू 1 से i लेस देन n, i प्लस प्लस.
प्रीफिक्स ऑफ आई में ऐड कर दो प्रीफिक्स ऑफ आई माइनस वन। राइट। हम्म। यहाँ पे प्रीफिक्स भी भेजो, एक काम करो, ठीक है। तुम तोड़ तभी सकते हो जब वो प्रीफिक्स भी कुछ हो। तो बेसिकली अगर इंडेक्स जीरो हो गया तो माइनस वन हमने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। अदरवाइज हम बोलेंगे, अदरवाइज जब हम तोड़ रहे हैं शायद जब भी हम बोल देंगे ना। अम, देखो, रिटर्न माइनस वन क्यों होगा, जीरो होगा ना। इफ इंडेक्स इज जीरो और प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स इज जीरो देन रिटर्न जीरो, ठीक है। कि इस पूरे प्रीफिक्स से तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अम, नहीं यार, ऐसा भी नहीं है। मे बी जब तुम तोड़ रहे हो, जब तुम देखो, मतलब मूव अहेड चलो कर ही सकते हैं, है ना। बट कैन वी क्लोज इट। तो अगर इफ हैव वन इज समथिंग, ठीक है। वन इज समथिंग एंड इंडेक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन zero and prefix of index minus 1 is something, then you can close it. And similarly, move ahead, can we close it? So the same thing, if minus 1 is greater than or equal to 0 and prefix of index minus 1 is something, then I think you can close it. You need to pass like prefix also. Let's see. अरे यार, क्या हो रहा है भाई, नॉर्मल से डीपली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। फर्स्ट टेल मी व्हाट इज प्रीफिक्स। 011, okay, cool. Now डीपी यहाँ से गया, ठीक है, एन माइनस वन से। मैंने देखा कि ठीक है, अभी ओपी वन ओपी टू पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। या तो चलते जाएं या यहीं क्लोज कर दो। तो क्या हम क्लोज कर सकते हैं, क्लोज तो कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो अब ओपी वन में जब हम गए तो हमने बोला कि इंडेक्स माइनस वन, और हमारे पास कोई वन है नहीं, ठीक है। अब हम यहाँ पे आए, तो अब हम जब वन पे आए तो वन पे हमने देखा कि क्या हमारे पास अब नहीं है। हाँ, तो क्या क्या हम मूव ऐड कर सकते हैं ना, मूव ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्या हम क्लोज कर सकते हैं। आ, अच्छा, बट एक बार तुम जब भी क्लोज कर पाओगे ना, जब तुम क्लोज कर रहे हो तो तुम्हें यू नीड टू मेक श्योर कि अगर इंडेक्स, देखो हैव वन तो होना ही चाहिए। उसके बाद अगर तुम क्लोज कर रहे हो, वो इंडेक्स एग्जिस्ट करता है। इफ इंडेक्स इज जीरो, तो या तो इंडेक्स जीरो हो या फिर ये चीज एग्जिस्ट करती हो, है ना।
या तो इंडेक्स 0 हो, देखो तो तुम क्लोज कर सकते हो। I think this should be the case. Hmm, can we close it? तो यहाँ पे भी हम क्लोज तो नहीं करेंगे। ओके, जब हम जीरो पे आ रहे होंगे लास्ट वाले, तो हमारे पास हाफ वन वन होगा, राइट? या सो बेसिकली मूविंग अहेड तो नहीं, चलो ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स इज इक्वल टू जीरो आएगा। ओके, एंड नीचे वाला 0 1 0 0 and 1. Let's see if we get 3. We're getting 6. Okay. 0 1 में एक वे है, ठीक है। 1 1 और 0 में एक वे है। 0 और 1 अगर हमारे पास आ चुका है तो एक वे यही है कि उसको काट दो। वन और ज़ीरो एक तरीका है। ओके, वन, ठीक है। तो अभी बेसिकली द पॉइंट इज देयर आर थ्री वेज टू स्प्लिट नम्स इनटू गुड सब एरेज। जब तुम यहाँ खड़े हो, है ना, तुम क्या बोलोगे बेसिकली कि since this is 1 and we don't have like 1, right? So या तो मूव अहेड कर सकते हैं या यहीं भी क्लोज कर सकते हैं, राइट? तो हाँ, तो अगर मूव अहेड करते हैं तो वो बोलेगा कि ठीक है, डीपी ऑफ इंडेक्स -1 1 नाम्स, ठीक है। अदरवाइज अगर क्लोज करना है तो या तो इंडेक्स 0 हो या फिर इंडेक्स -1 इंडेक्स 0 हो, है ना। अदरवाइज प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स -1 0 हो। फिर प्रीफिक्स ऑफ इंडेक्स -1 कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम इस पे खड़े हैं फोर्थ पे, तो हमारा 4 0। ओके, 4 0 में OP1 और OP2 क्या आ रहा है? अगर हम
34 okay, so basically OP1 and OP2 अगर इंडेक्स 0 है, एक मिनट रुक, पहले हम यहाँ पे आएंगे राइट कि फोर्थ इंडेक्स पे 0 पे है ना। तो अगर हम OP1 देखें तो OP1 क्या बोल रहा है बेसिकली, OP1 क्या बोल रहा है बेसिकली कि मूव अहेड। तो मेरे ख्याल से इसको पहले छोटों वालों को देखते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ये क्या बोल रहा है, इंडेक्स हैव वन, वन पे अगर हैव वन है, इस इंडेक्स पे अगर हैव वन है तो 0 है। हाँ ठीक है, 0 पे 0 पे अगर 1 है, OP2 is 1, okay, that makes sense right, because we can close it. Similarly अगर 1 है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, we can have 1. um, okay, so far it makes sense to me. फिर हमारे पास अगर 2 है और कुछ है और पीछे से अगर आ रहा है, we can have two choices. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया राइट, क्योंकि जब तुम 2 पे बोलोगे है ना, यहाँ पे तो तुम बोल रहे हो कि कुछ है हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली तुम यहाँ पे खड़े हो और तुम बोलोगे कि कुछ है मेरे पास, तो या तो तुम मूव अहेड करोगे है ना, तुम मूव अहेड कर नहीं पाओगे बिकॉज TP ऑफ 1, 1 is 0, या फिर तुम क्लोज करोगे राइट। अगर तुम क्लोज करते हो तो तुम बोलोगे 1, ओके, बोलोगे 1 प्लस DP ऑफ index -1, ओके, इट मेक्स सेंस राइट। तो तुम्हारे पास दो तरीके कैसे हैं, दो तरीके क्यों बोलेंगे इसमें हम। हाँ यार, मेरे ख्याल से अभी 1 नहीं आना चाहिए था। भाई आज तो एकदम ही बेकार कर रहा हूँ यार मैं। अभी देख, फिर अगर ऐसे कर रहे हो तो फिर जब तुम इंडेक्स लेस देन 0 है वहां पे पूछते हो, ठीक है, अम, है ना, तो यू नीड टू मेक श्योर कि देखो, तो इंडेक्स 0 है तो मे बी
Okay, now I think it is correct. क्या यार इतना बेकार सोल्यूशन लिखा है. Okay, anyways it is working now. बेसिकली मैंने किया क्या कि कैन बी टू पॉसिबिलिटीज, या तो हम आगे बढ़ जाएं या फिर हम क्लोज करें. क्लोज कब कर सकते हैं, व्हेन वी हैव वन. तो आई थिंक ये भी देखने का ज़रूरत नहीं पड़ता है इसमें. पता नहीं, इसको सबमिट करके देखता हूँ. अभी बहुत हो गया. कंट्रोल इससे हो जाएगा. ओके, देखते हैं सबमिट करके होता है या नहीं. ओके. शिट यार इतना टाइम ले लिया. हाउ मेनी पीपल सबमिटेड? 361. Minimum operations to make the integer 0. This looks like a math problem or bits manipulation problem. They are given two integers. In one operation, you can choose integer I in the range this. कोई भी टू द पावर समथिंग को चूज कर सकते हो और तुम सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इस चीज को num1 से. Okay, the 2 to the power I is always positive. Num1 is like can be positive, can be negative. है ना? So and num1, num2 है ना? Tell the integer denoting the minimum number of operations needed to make num1 equal to 0. If it is impossible to make num1 equal to 0, return -1. जब हमारे पास 3 था और num2 -2 था, हमने क्या किया कि 3 है. ठीक है, तो we can make 3 equal to 0. The following operations. We choose I is equal to 2 and subtract 2 square plus something from 3. ओके. बेसिकली लेट्स से अगर हम के ऑपरेशंस में इसको कर ले रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमने नम्स 1 में से के टाइम्स तो जो है नम्स 2 को घटा दिया होगा, है ना. और हमने 2 टू द पावर I1 प्लस 2 टू द पावर I2 प्लस 2 टू द पावर I3 अप टिल 2 टू द पावर IK तक इसको घटाया होगा, राइट. अभी तुम ऐसे सोचो कि अगर हमें मिनिमम ऑपरेशंस चाहिए, है ना, और nums1 और nums2 सम कुछ हैं, तो कितने ऑपरेशंस में कर लेंगे हम ये काम. और द पॉइंट इज कि अगर ये चीज 0 है, तो मैं ये बोलूंगा कि 2 टू द पावर I1 प्लस 2 टू द पावर I2 प्लस 2 टू द पावर I3 प्लस 2 टू द पावर IK. ठीक है, दिस हैज टू बी इक्वल टू nums1 माइनस k टाइम्स nums2. एंड द पॉइंट इज कि 2 टू द पावर I वगैरह जो है, ये एक बिट को रिप्रेजेंट करेगा, राइट. तो nums1 माइनस के nums2 को क्या हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यूजिंग सम बिट्स. ओके, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन टू. ओके, नाउ अभी के कहाँ तक हो सकता है, राइट, ये जानने वाली बात है. तो पॉइंट इज कि हम तो कहीं तक भी नंबर ले लेंगे, 60 तक भी ले लेंगे.
और 2 to the power 0 तक है, ठीक है। ओके। तो कहने का पॉइंट ये है यार कि अगर हम मतलब लेट्स से के कुछ है ना, मेरे ख्याल से 60 से ज़्यादा ऑपरेशंस तो नहीं कर रहे होंगे हम कभी भी ना, कि बेसिकली यहाँ पे देखो ये नंबर पॉजिटिव है, राइट, जस्ट पॉजिटिव। यू ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि ये नंबर भी पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। बिकॉज अगर लेट्स से ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, मतलब उसमें माइनस 0 का भी नहीं आ सकता वो, है ना। तो अभी तुम ऐसे सोचो कि लेट्स से ये नंबर कुछ आता है, मतलब कुछ बिट्स में आता है ये नंबर, और उसमें लेट्स से कि नंबर ऑफ सेट बिट्स जो है वो के से ज़्यादा ही है ना, तो फिर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिनिमम मतलब एटलीस्ट के तो सेट बिट्स होनी चाहिए, कि नहीं ज़्यादा से ज़्यादा के होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो फिर नहीं कर सकते हम, बट अगर उससे कम है तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर के इज़ लेट्स से 10 और सेट बिट्स जो हैं वो दो ही हैं, ओके, फॉर एग्जांपल like the number is 0 0 1 0 0 0 0। अब इस केस में अगर तुम्हें 10 सेट बिट्स चाहिए तो तुम्हें ये नंबर बनाना है। ओके, अगर ये वाली सेट बिट बनाना है तो इसके दो चाहिए होंगे, या फिर इसके चार, या फिर इसके 8, या फिर इसके 16, राइट। या मतलब नाउ द प्रॉब्लम बॉइल्स डाउन कि लेट्स से के को जब हम बढ़ा रहे हैं, है ना, लेट्स से कि नंबर ऑफ सेट बिट्स घट रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि जो नंबर ऑफ सेट बिट्स थे वो के से कम हो गया। फॉर एग्जांपल के इज 10 एंड नंबर ऑफ सेट बिट्स, मतलब नाउ यू नीड टू टेल कि क्या है कि इस नंबर को हम एग्जैक्टली के सेट मतलब के टू द पावर आई से बना सकते हैं क्या, दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज, राइट। एग्जैक्टली के टू द पावर आई से कोई नंबर बना सकते हैं क्या। ओके, तो अगर तो वो के से तो फिर ग्रेटर और इक्वल टू होना ही चाहिए, ठीक है, वो नंबर जो है जो बन रहा है। और उसके बाद अगर वो के से बड़ा है, इट मैक्स में भी वो तो कहीं पे भी जा सकता है इट मैक्स। लेट्स से कि वो नंबर कुछ है, नंबर ये है कुछ 1010, इतना ही है। लेट्स से दिस इज लाइक 1 2 4 8, सो 10, दिस इज 10। और जो के है वो लेट्स से 5 है। क्या हम 5 टू द पावर आई की मदद से के मतलब 10 बना सकते हैं। अह
अगर हम इसको इसको बनाना है, ठीक है, अगर हमें इसके यार दो लेना पड़ेंगे, या इसके चार लेना पड़ेंगे, या इसके आठ लेना। हम्म nums1 minus sometimes into nums2, so definitely this can be right, so then it's not possible, right? But otherwise is it possible? तो फॉर एग्जांपल वही ना कि लेट्स से अगर 10 है, 1010 है, इसको कोई बोले दो सेट बिट्स में बनाना है तो बन जाएगा, एक सेट बिट में बनाना है तो नहीं बनेगा ऑब्वियसली, राइट? लेट्स से कि बोले तीन में बनाना है ना, तो भी बन जाएगा, एक इसको देंगे और दो इसको देंगे। ओके, कोई बोले चार में बनाना है तो दो इसको देंगे, दो इसको देंगे। ओके, तो बोले पांच में बनाना है तो फिर पांच सेट बिट्स में, है ना, पांच में कैसे बनेगा? ऐसे सोचो कि 8+2 है, उसको कुछ पांच लोगों में बनाना है। हो जाएगा ना, इसको पांच बार ले लो, राइट, इसी को पांच बार ले लो। ये कैसे किया तुमने? इसको बनाने के लिए हमें या तो ये दो लेने पड़ेंगे, या ये चार लेने पड़ेंगे, या ये आठ लेने पड़ेंगे, तो इसको चार ले लो और इसको एक ही ले लो। वाओ, क्या हम छह बार में कर पाएंगे इसको? अम, छह बार में छह बार चाहिए ना? हाँ, तो इसको नहीं, तो इसको या तो एक बार लो, या इसको दो, या इसको चार, या इसको आठ। तो छह बार में अगर आपको चाहिए है तो हम इसको चार बार लेंगे और इसको दो बार लेंगे, या हम सात बार में कर सकते हैं। सात बार में अगर अपन को चाहिए है तो इसको छह बार लेंगे और इसको ओके, 6+1, आठ बार करना हो तो आठ बार करना हो तो 6+2। ओके, नौ बार करना हो तो 8+1। ओह, ओके, 10 बार करना हो तो 10। क्या इसका ये मतलब है कि हम हर बार कर पाएंगे? इसका कोई प्रूफ होगा ना, जो मुझे अभी समझ नहीं आ रहा। मतलब कहने का ये मतलब है कि लेट्स से 1+2+4+8 है, इसको 10 बनाना है और इनके कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है? यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x4 है, यहाँ पे x8 है। तो अगर तुम दो लोगों को लेना चाहते हो तो ये दोनों आ जाएंगे 1 1। सिमिलरली अगर तुम्हें तीन चाहिए, है ना, तीन चाहिए, तुम बोलोगे कि तीन लोग चाहिए, राइट? एक, दो, तीन। चार चाहिए तो
तो 4 लोग चाहिए तो बेसिकली 1 2 3 4 5 चाहिए तो 5 चाहिए तो एक, या देखो 5 चाहिए ना, तो इसको 2 बार ले लो। 5 चाहिए तो ये 5 बार आ गया। 6 चाहिए तो देखा हमने। इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू मेक लाइक ऑल नंबर्स? um, इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 है ना, इसको 10 मूव्स में हम कैसे बनाते हैं, 10 into 1 करके। 9 मूव्स में कैसे बनाते हैं, तो हम बोलते हैं 8 into 1 प्लस 1 into 2। 7 मूव्स में, तो ये तो 10 मूव्स हैं, 9 मूव्स हैं। 8 मूव्स में कैसे बनाते हैं, तो 8 मूव्स में हम बोलते हैं कि ठीक है, अगर हम यहाँ से एक निकाल लेते हैं, यहाँ से 2 निकाल लेते हैं, ठीक है, 6 into 1 प्लस, अब हमें 4 चाहिए तो 2 into 2। फिर 7 मूव्स में हम कैसे बनाते हैं, तो 7 मूव्स में अगर बनाना चाहते हो तो हम बोलते 4 into 1 प्लस, हमें 6 और बनाना है, तो 7 मूव्स चाहिए ना, तो सेम चीज बोल सकते हो, 6 into 1 प्लस 1 into 4। ओके, 6 मूव्स में 4 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 4। तो बेसिकली यहाँ से 2 निकाला और एक ऐड कर दिया, यही तो कर रहे हैं ना। अभी क्या हम यहाँ से 2 निकाल के एक ऐड कर सकते हैं, तो वही होगा, बन जाएगा ना। लेट्स से अगर मैंने बोला 2 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 4, अगर मैंने ऐसे बोला तो क्या ये 5 मूव्स हैं, 1, हाँ, बेसिकली 2 निकालते जाओ एक ऐड करते जाओ, राइट। इन दोनों को निकाल दो, एक ऐड करो, यही तो कर रहे हैं हम। ये हो गए 4 मूव्स। फिर 2 निकालो एक को ऐड करो, तो 1 into 2 2 into 4, ये हो गए 3 मूव्स। फिर 2 को निकालो, है ना, और एक को ऐड कर दो, तो 1 into 2 1 into 8, ये हो गए। तो जब भी 2 है हमारे पास एटलीस्ट, उनको निकालते जाओ और एक उससे बड़ा ऐड करते जाओ। दैट्स व्हाट द सॉल्यूशन इज, है ना। तो कहने का ये मतलब है कि हर बार हम पहुंच जाएंगे, राइट। क्योंकि लेट्स से इसको तुमने किसी इसके कॉम्बिनेशन में लिख दिया, अब मैं 2 निकालूंगा यहाँ से, देखो मैंने 2 निकाले और एक ऐड कर दिया इससे बड़ा वाला पावर, फिर 2 निकाले और एक ऐड कर दिया, ठीक है। फिर जब 6 into 1 था, 6 into 1 था प्लस 2 into 2 था, फिर 2 निकालो और एक ऐड कर दो, फिर 2 निकालो और एक ऐड कर दो, फिर 2 निकालो और एक ऐड कर दो। अब फिर तुम 2 निकालो और एक ऐड कर दो। ये चलता रहेगा जब तक लोगों के पास 1 1 1 ना बन जाए, और 1 1 1 तभी बनेंगे जब वो के उतने बिट्स पे होगा, है ना। उससे पहले अगर किसी के पास भी ज्यादा है तो वो बना सकते हैं हम। ओह ओके, तो ठीक है, अब आ गया हमें करना, राइट। तो बेसिकली इसमें हम क्या देखेंगे कि हम ऐसा चेक करेंगे, राइट, एक एक बिट्स पे चेक करके देख लेंगे। nums1 माइनस के टाइम्स nums2, है ना। तो लेट्स चेक फॉर लाइक 60 टाइम्स। क्या ये फर्स्ट टाइम में भी हो सकता है, नहीं ना, एटलीस्ट 60 तो लगेंगे।
तो let's check for maybe 60. Should we check it for 60? Yeah. Or maybe like until like the nums 1 minus negative now. You know? So like we can int moves from 1 till 65 moves plus plus. ठीक है. अभी हम क्या बोल रहे हैं कि जो रिजल्ट हमें बनाना है वो है nums 1 minus moves times nums 2. है ना. और अगर ये रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है मे बी एक आंसर लेके चलते हैं हम जो कि -1 है ना. तो हम रिटर्न कर देंगे आंसर. अगर रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है तो नेगेटिव या ज़ीरो भी हो जाता है मेरे ख्याल से, राइट. हाँ मतलब ये चीज़ ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. हाँ अदरवाइज देयर वोंट बी एनी वे. तब अगर 3 बार किया तो कैसे, अगर 4 बार किया तो ये ज़ीरो आ गया है ना. 5 बार करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा. हम्म तो ये ज़ीरो भी नहीं होना चाहिए. ठीक है. नहीं आइडियली ये बढ़ भी सकता है. ठीक है बट ज़ीरो नहीं पहुंचेगा ना कभी. तो यू कैन ब्रेक. अदरवाइज अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि अब नाउ वी नीड टू चेक इफ नंबर ऑफ सेट बिट्स. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट नंबर ऑफ सेट बिट्स इन लाइक रिजल्ट. तो while temp is something bits plus plus and divide temp by 2. ठीक है. अब हमें ये चेक करना होगा कि अगर जो नंबर ऑफ सेट बिट्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो ऑपरेशन से कम नहीं है, मतलब अगर वो से जो भी नंबर यहाँ पे आता है तो ये नंबर ऑफ मूव्स हैं, वी नीड टू मेक श्योर कि एटलीस्ट इतने तो बिट्स होने ही चाहिए, है ना. अगर इससे कम है तो कुछ नहीं होगा. जो नंबर ऑफ बिट्स हैं एटलीस्ट मूव्स के बराबर होने चाहिए. नहीं नहीं, द पॉइंट हियर दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि जो रिजल्ट है, देखो बेसिकली अगर रिजल्ट जो है वो बिट्स से ही छोटा पड़ जाता है तो कुछ नहीं कर सकते, राइट. तो रिजल्ट को बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स से तो बड़ा होना चाहिए. एंड है ना. तो अगर रिजल्ट बिट्स से ही छोटा हो जाता है, नहीं यार क्या बोल रहा है, देखो अगर रिजल्ट जो है वो नंबर ऑफ मूव्स से ही छोटा हो जाता है देन यू कैन कंटिन्यू. ठीक है. अदरवाइज तुम यहाँ पे बिट निकाल लिए, यहाँ पे मूव्स निकाल लिए, है ना. तो अब तुमने क्या बोला कि ठीक है. अब तुमने क्या बोल दिया कि बेसिकली मुझे 10 अगर है तो वो इतने मूव्स में चाहिए पड़ेगा. जो मूव्स है, अगर अगर मूव्स ही बिट्स से छोटे हो जाते हैं तो भी कंटिन्यू.
है ना, या तो रिजल्ट मूव्स, और मूव्स अगर बिट्स से ही छोटे हो जाते हैं, इसमें तो मूव्स ही नहीं है हमारे पास। अब इसका ये मतलब है कि मूव्स बिट्स से बड़े हैं और रिजल्ट जो है वो भी मूव्स से एटलीस्ट बड़ा है। अगर ऐसा है तो फिर शायद हमारे पास आंसर है, विच इज लाइक द मूव्स एंड वी कैन ब्रेक। Let's see if it works. Use example test case. 4 and minus 1. Okay. 4 क्यों है? Like 3 जब हमने किया होगा तो nums 1 which is 3 minus k times nums 2, it is like 9. So what is the set bit in 9? 9 is like 8 plus 1. 2 set bits are here, okay? And how many moves do we have? 3 moves, right? So हमने ऐसे क्यों बोला कि अगर मूव्स बिट्स से छोटे हो जाएं, नहीं अगर बिट्स ज़्यादा हैं तब तो चलो ठीक है। रिजल्ट ओके। I'm too slow यार today. Um, a dot make the integer 0 num1 num2 int num1 is 3, num2 is -2. Let's see what we are getting. जब मूव्स 1 थे तो रिजल्ट 5 था, जब 3 थे तो रिजल्ट 9 था, और बिट्स कितने थे? नहीं यार, दैट्स नॉट हाउ यू काउंट नंबर ऑफ सेट बिट्स यार, व्हाट आर यू डूइंग? बिल्ट इन पॉप काउंट फंक्शन, built-in pop count ll, right? That's how you count it. So basically bits will be underscore underscore built-in pop count ll of result, right? That's what it should be. Okay. नाउ हमने किया क्या बेसिकली कि हम 65 मूव्स तक जा रहे हैं। हमें 65 कैसे पता कि मूव्स में आ ही जाएगा आंसर? वो इसलिए पता है क्योंकि जब तुम num1 माइनस के टाइम्स nums2 करोगे, लेट्स से के 30 भी है ना, तो या के अगर लेट्स से 60 भी है, जब तुम ये नंबर बनाओगे भी, लेट्स से कोई बड़ा भी नंबर आ गया तो उतने मूव्स में इतने नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तुमने बिट्स निकाल लिया इस रिजल्ट का और तुमने ऐसे पूछा कि क्या ये रिजल्ट जो है वो नंबर ऑफ मूव से छोटा है क्या? देखो, नंबर ऑफ मूव से छोटा का मतलब यह है कि यार अगर 1 1 1 1 भी करोगे यार तो मूव्स जितना नंबर तो बनना चाहिए। अगर रिजल्ट मूव से छोटा है तो कुछ नहीं कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते जाओ। ओके। या तो मूव्स भी बढ़ेंगे, रिजल्ट भी बढ़ सकता है।
सिमिलरली मैंने ये पूछा कि क्या जो नंबर ऑफ मूव्स हैं वो बिट्स से छोटे हैं क्या, तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट अगर ये दोनों चीज़ हो गई तो फिर मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा। दैट्स व्हाट वी डिड। राइट, लेट्स सी। Let's submit it. Okay. Now how much time is left? Still have 20 minutes. Okay, cool. How many people have submitted it? What? No. In 23, there are n one index robots, each having a position on a line, health and movement direction. Next robot है, position है, health है, movement direction है. Given zero indexed integer arrays, positions, health, and a string directions, all integers and positions are unique. And one index robots. Not moving on the line simultaneously at the same speed and the given. If two robots ever share the same position, they will collide. Robot with lower health is removed from the line, and the health of the other robot decreases by 1. Surviving robot continues in the same direction it was going. If both robots have the same length, same health, they are both removed. Okay, your task is to determine the health of the robots that survive the collisions. The same order that the robots were given. Final health of robot 1, final health of robot 2, if survive. Return an array containing the health of robots. Positions may be unsorted. Okay. 5, 4, 3, 2, 1 और health दिए हैं और directions दिए। ऐसे बेसिकली लोग हैं और ये चलते जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। ओके, बट अगर ये एक सिनेरियो है तो इसमें क्या होगा कि ये इससे टकराएगा और ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। सिमिलरली ये इससे टकराएगा तो ये बेसिकली 14 हो जाएगा। ओके, ओके, ओके। तो बेसिकली इसमें कंस्ट्रेंट्स कितने हैं? ओके, नाउ ऐसे सोचो कि बेसिकली होगा क्या, है ना। लास्ट में क्या हो रहा होगा कि जो कुछ रोबोट्स बचे हुए होंगे ना वो सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, राइट, है ना। जिसका मैक्सिमम हेल्थ होगा, ठीक है, जिसका भी मैक्सिमम हेल्थ होगा, लेट्स से वो क्या कर रहा होगा, वो अपने पोजीशन पे चलता जा रहा होगा, राइट, और जैसे उसको लोग मिल रहे होंगे वो उड़ाता जा रहा होगा। ओके, और बेसिकली टू रोबोट्स कोलाइड इफ, अगर ये इधर है और ये वाला इधर है, और ये कब हट जाएगा, जब बेसिकली ये इसको हटा देगा। ओके, हाउ टू डिसाइड कि ये रोबोट बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, देखो, अगर कोई रोबोट ये, ठीक है, अगर ये वाला इधर भागता है देन इट्स फाइन, ये तो बच जाएगा, राइट। अगर ये लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग इधर भाग रहे होंगे, और सिमिलरली द सेम थिंग, कुछ लोग इधर भाग रहे होंगे, राइट, सेम थिंग। अगर दो रोबोट कोलाइड करते हैं
तो क्या होगा, तो बेसिकली एक हट जाएगा और एक का साइज वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, अब लेट्स से कि ये इधर जा रहा है, तो अब ये जा रहा है, ठीक है, चलो इसको देखते हैं। लेट्स से कि ये भी इधर ही जा रहा है। ओके, अब इसको देखते हैं। लेट्स से ये इधर आ रहा है ना। हम बेसिकली अब ये बोलेंगे कि देखो इन दोनों में किसका बड़ा है, मतलब किसका पावर बड़ा है। और ठीक है, अगर ये जितने को भी मिटाता है तो ठीक है, अदरवाइज ये बच जाएगा, अदरवाइज ये खुद ही हट जाएगा, है ना। फिर हम आगे वाला देखेंगे कि ये इधर जा रहा है या इधर आ रहा है। अगर इधर आ रहा है तो देखो कि ये जो मेरे पास स्टैक है इसमें से ये कितने लोगों को उड़ा रहा है ना। ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा ना, और क्या। ओके, तो बेसिकली ओके, तो int n is like positions। यार एक तो तुमने वो नहीं कर रखा ना, सॉर्ट नहीं कर रखा। आई थिंक सॉर्ट करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट एंड positions and pair of int comma char maybe। ये क्लोज किया, ये क्लोज किया, फिर शायद ये क्लोज करना पड़ेगा। वो बोल दो रोबोट। ठीक है, तो int n is like positions dot size and this is this। now for each position you will say robot of I comma dot first is position of I। yeah, and robot of I dot second dot first, or maybe you can say dot second, is the sphere, is basically health of I comma directions of I। ठीक है, then you can sort this robot। so robot dot begin, robot dot end। ठीक है, अब तुम्हारे पास सारे लोग हैं एंड लाइक वेक्टर int ans। तुम अगर सर्वाइव्ड है रोबोट तो फिर तुम उसको रख लोगे, अदरवाइज तुम उसको जाने दोगे। ठीक है, या देखो अगर कोई इधर जा रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है तो फिर तो आंसर में आंसर ही आ जाएगा। अगर कुछ है तो या तो ये खुद हट जाएगा या ये सब लोगों को हटाएगा, राइट, है ना। दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये खुद हटेगा या ये लोगों को हटाएगा। तो अगर ये सब लोगों को हटा देता है तो उसके बाद भी हम चेक कर लेंगे इसको, राइट। वेक्टर इंट आंस। अब हम चल रहे हैं, ठीक है, फॉर इंट आई 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अभी ऐसे सोचो कि अगर इसका डायरेक्शन आर है, इफ डायरेक्शंस ऑफ आई इज लाइक राइट, इसको हम रख लेंगे एक स्टैक में, वेक्टर इंट एस टी समथिंग। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेसिकली कि एस टी डॉट पुश बैक, इसका जो भी हेल्थ होगा, है ना। तो बेसिकली health will be robot of I dot second dot first and direction would be robot of I dot second dot second। अब अगर डायरेक्शन जो है वो R है तो इसको स्टैक में रख लो, राइट, एस टी डॉट पुश बैक हेल्थ। ठीक है, एल्स अब क्या होगा, या तो ये खुद हट जाएगा या फिर जितने लोग स्टैक में हैं उनको ये एक एक करके हटाएगा, है ना। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर ये बंदा है, के पीछे भी कोई है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। ओके,
अब या तो ये हट जाएगा या स्टैक में जो लोग हैं उनको ये हटाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम कि while st is not empty, ठीक है, and st dot back, task is to determine the health of the robots that survive the collisions. Okay, अगर st dot back is less than the current health, हम बोलेंगे कि st dot pop back and health minus minus। ठीक है, अब ये चेक करो कि जब तक ये हुआ तो ठीक है, बट या तो अब st, हाँ, या तो st खत्म हो गया होगा या ये खत्म हो गया होगा। ठीक है, अभी तक ऐसा हो सकता है कि ये खत्म हो जाए, हो सकता है ना, क्योंकि हेल्थ तो आई गेस पॉजिटिव दिए होंगे। या सो बेसिकली अगर स्टैक एम्प्टी है, देखो बेसिकली अब ऐसा सोचो कि ओके, ओके, तो while st is not empty and st का बैक जो है वो हेल्थ से छोटा है, st डॉट पॉप बैक। वैसे ऐसा भी हो सकता है ना कि अब हेल्थ के बराबर हो गया हो कोई, तो फिर लास्ट वाले को देखना पड़ेगा। ठीक है, कि या तो ये, ठीक है, तो अगर एस टी का साइज स्टिल लाइक इफ एस टी स्टिल नॉट एम्प्टी, तो ये मतलब है कि इसका कोई चांस नहीं है अब, ठीक है, बचने का, है ना। हम बोलेंगे कि अगर एस टी डॉट बैक कंपेरेबल विथ हेल्थ, ठीक है, तो फिर हम बोलेंगे एस टी डॉट पॉप बैक एल्स एस टी डॉट बैक माइनस माइनस। बेसिकली अगर हमारे पास एक वेक्टर है num and we have 1 2 3, if I say num dot back plus plus and if I print num of 2, what will give me? Okay, so basically st dot back minus minus है ना। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर ये पूरा एम्प्टी हो जाता है तो फिर हम बोलेंगे कि आंसर डॉट पुश बैक दिस पर्टिकुलर हेल्थ, जो भी हेल्थ है अभी वो। You need to make sure कि else if health is something is like greater than equal to 0, not be 0, right? एस टी लोग बच जाएंगे ना, तो फॉर ऑटो एक्स एंड एस टी फिर डॉट पुश बैक एक्स, um 217, what is this? वो जैसे वो दिए हुए थे उसी उसमें देना है।
Okay. Maybe positions, or um, और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बेसिकली, फिर तुम आंसर में पुश बैक कर रहे हो उसको। एस टी भी बेसिकली वेक्टर ऑफ पेयर कंटेंट हो जाएगा। एस टी में पुश बैक कर रहे हो तो तुम हेल्थ कॉमा इंडेक्स डालोगे, राइट? Position. Now st dot back dot first डिस्कस करेंगे हम। now st dot back t and st dot back dot first with st dot back dot first, so that pushback health and like the position, right? Now similarly for auto x you are pushing this thing to answer, and now instead of returning the answer you will say you have the position, right? So let's create another a for auto x in position p if m of x, for auto x in months, m of x dot second, x dot first, m of x exist, a dot push back, m of x, return a. So the vector of pair intent answer should be oh, around 2 minutes left. Okay. I performed really bad, right? Yep, I performed really bad. Who is this guy? Ankan Mahapatra. What should be my time? 1:27. Let's see. We can get some place under 200. Maybe no. Okay. It's around 350. Cool. No worries. Not around 350 yet. Not sure why I'm not with them. This time the good thing is कि मैंने कोई wrong submission नहीं मारा। मैं हर बार wrong submission काफ़ी मारता हूँ, बट इसमें मैंने काफ़ी टाइम लिया और सोच सोच के किया। But I think it's fine. I think around 350 would be my round. Let's refresh it once. Nope. I think it's fine.